सभी को मेरा सादर नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वह है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। और बच्चों काफ़ी लिमिटेशन होती है क्लास में, इसलिए भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और उन लिमिटेशन को दूर कैसे किया जा सकता है। अब आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको हम यूज करते हैं। और हमने सोचा था, मैंने 1.5 साल पहले कि मैं सोशल साइंस जेआरएफ की क्लासेस दूंगा, पर मैंने अब शुरू कर दी। डियर स्टूडेंट, अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करूं आप लोगों से, तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम वेयर, ये सबको पता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एक सेंटेंस यू, इट हैज़ कंसिस्टेड विद द 2 वर्ड्स एक सेंटेंस यू। X means out and tensio means stretching. In England, in 1867 to 68th century, it has came to introduce in the society, and it was originated within the system of university extension, which was originated with the system of university extension, which was taken by the first Cambridge, after that Oxford University. So सबसे पहले जो एक्सटेंशन वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ, आफ्टर दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। देन द एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट यूज इन 1873, दैट इज द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, and in London University it was the 1876, and Oxford it was the 1878. So what was the basic objective of extension education? What was the objective? ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले हम कह देते हैं ऑब्जेक्टिव, किसी भी कोर्स का ऑब्जेक्टिव कह देते हैं। आज के टाइम पे जब से नए का और ICR का ये सब मूल्यांकन होने लगा, तब से ऑब्जेक्टिव हर चीज़ में आता है बेटा। तो अब आपकी बात की जाए ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली। सो ऑब्जेक्टिव अ डिजाइन पर्टिकुलर कोर्स टू अचीव समथिंग और टू प्रैक्टिकली मैनर, दैट इज द ऑब्जेक्टिव टू अचीव द टारगेट। सो व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस कोर्स, व्हाट वाज द नीड टू डिजाइन दिस कोर्स, सो व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सटेंशन एजुकेशन। सो फर्स्ट वन, extension was to take the educational advantage of university to ordinary people. According to the Swan and Clare in 1984, it had defined university extension was to take the educational advantage university to ordinary people, मतलब जो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते उनके लिए भी है। And historical extension meant education in agriculture and in home economics, means where education is practically aimed at improving farm and home, means the practical manner to learn something, to cultivate the crop. What was the problem is going on field, that is, so this one. Then next slide is the terminology. I think, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। थोड़ा सा एक्चुअली मैं लैपटॉप पे PPT बनाई, फिर मैंने मोबाइल में डाल दिया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा ये गलती ना हो। ओके, व्हाट वाज द टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सटेंशन? एक्सटेंशन टर्मिनोलॉजी की हिस्ट्री क्या है अगर बात करूँ तो एक्सटेंशन was once known as application of scientific research and new knowledge of agricultural practices through farmer education. Means क्या कि whatever the knowledge of scientific research, we need to transfer that technology for the farmer benefit. The field of extension now encompasses a wider range
of communication and learning activities organized for rural people by professional from different disciplines including agriculture, marketing, health, business studies, means FPO in the form of cooperative society, means nowadays we have gained enough amount of the production and productivity, but the problem is that the farmer are not getting price. So we need to develop the capacity related to agriculture marketing. We need to develop business model. So that is our role. Then another terminology of extension. The term extension was first used to describe adult education program in England. It has first used in adult education program in England. Second half of the 19th century, these programs help to program work of universities beyond the campus into the neighboring community. Means कि beyond the campus of university, beyond the school of education, we can train the farmer, we can train the community to sustain livelihood security, for the crop of cultivation, for commercialization of agricultural farm or agricultural business. So that is. So the term was later adopted in United States of America, while Britain it was replaced in the advisory service. In the 20th century, a number of the terms used in different part of the world describe the similar concept. बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है जीआरएफ में कि सबसे पहले मैंने जो मुझे अपना आइडिया है, एक्सपीरियंस है, इन विच यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस द extension word, that is Cambridge in 1873. Then the term extension was first used in which program? So that is the adult education program. And the thing is that कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाइल ब्रिटेन इट वाज रिप्लेस्ड इन एडवाइजरी सर्विस, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको अडॉप्ट किया था, फिर ब्रिटेन ने भी इसको अडॉप्ट किया और एडवाइजरी सर्विस फॉर्म में 20th सेंचुरी में. सो दिस वन आर द क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट. देन दीज आर द सम टर्मिनोलॉजी विच आर यूज बाय द सम. I can share this PPT also. कंट्रीज अरबिक में इसको अल इरशाद बोलते हैं, गाइडेंस विच मीन्स गाइडेंस. जिरात भी बोलते हैं, दैट मीन्स एक्सटेंशन. अगर मैं बात करूं डच में वॉरलिचिंग, लाइटिंग द पाथ बोलते हैं. अगर जर्मन की बात करूं तो इसको बैटुंग बोलते हैं, एडवाइजरी वर्क से रिलेटेड है. फ्रेंच में वोल्गरिश बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन दैट मीन्स. स्पेनिश में बात करूं कैपेसिटेशंस, जिससे कैपेसिटी बना है, और इम्प्रूविंग स्किल्स. इंडोनेशियन में पेन्यूल्यूहन, लाइटिंग द वे हेड विथ अ टॉर्च मीन्स लाइटिंग द पाथ. दैट इज आल्सो सिमिलर, बट द थिंग इज दैट लाइटिंग द वे कि हम लाइट को क्या करते हैं, टॉर्च के यूज करते हैं टू हेड, कि कैसे आगे बढ़ना है फार्मर्स को. दैट इज. देन मलेशियन पर कैम्बंगन extension service, that is also. Austrian Förderung, that is stimulate to go in the desirable direction. पास्तो में क्या बोलते हैं, ये पस्तो बोली जाती है अफगानिस्तान में, इसको बोलते हैं तोसीज, एक्सटेंशन एजुकेशन. थाई लाओ में सॉन्ग शुम टू प्रमोट, पर्शियन में तरबिज, तोसी, गोस्ट्रेश टू प्रमोट एंड एक्सटेंड नॉलेज अबाउट द एक्सटेंशन. देन
तो टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो टर्मिनोलॉजी क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन की? इन दिस आस्पेक्ट अगर हम वी कैन डी एक्सटेंशन एजेंट in the university employ work to assist many extension agent work cooperative extension service program at land grant university. There are sometimes referred as a county agent or educator. यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एडवाइजरी सर्विस के रूप में जब अडॉप्ट हुआ और यूएस में भी, तो वहाँ पर कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस के रूप में आया और वो प्रोग्राम लैंड ग्रांट कॉलेज में लैंड ग्रांट कमीशन के बेस पे यूनिवर्सिटी में इंप्लीकेट किया गया. आफ्टर दैट द एजेंट आर कॉल्ड county agent. Some definition about the extension education. So extension education is an applied science consisting of content derived from the research, accumulate field experiences and relevant principles drawn from the behavioral science, synthesized with useful technology in a body of philosophy, principles, contents, methods focused on the problem of out of school education for adult and youth according to the Liggins. Liggins has defined this कि it has content, research, accumulate field experience और principle, जो extension education principle हैं उनकी बात कर रहे हैं. And another definition also given by the Enjamer, that is a extension is an education, it is purpose is to change the attitude, practices of the people with whom the work done. So अब एंजाइमर की बहुत अच्छी क्लियर डेफिनेशन है कि इट हैज़, ये वो एजुकेशन है जो लोगों का एटीट्यूड चेंज कर देती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ला सकती है. प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल विथ हुम वर्क डन, वर्क के साथ में. सो दैट इज आल्सो एंजाइमर. एंड ओपी धामा अनदर डेफिनेशन आल्सो आई हैव डिफाइंड, ओपी धामा एंड भटनागर. आई विल शेयर दिस पीपीटी. And this one is the NCA. And now I am coming to the next slide because I have taken 5 definition. What is a extension? Where involve extension? कहाँ पर involve होता है extension? Extension involves the conscious usage of communication, information to help people from sound opinion, make good decision. ये किसने definition दिया? वैन डिवेन हॉकिंस ने. और रूलिंग की भी डेफिनेशन निल्स रूलिंग, जिन्होंने पहली बुक लिखी एक्सटेंशन साइंस की. तो एक्सटेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंटरवेंशन डिप्लॉयड बाय एन इंस्टीट्यूशन टू इंड्यूस चेंज इन वॉलंटियर बिहेवियर विथ अ pre-assumed behavior with a presumed public and collective activity. This one is a ruling, has given this definition, ruling, Nil's ruling. So this one definition is given by, I think these definitions are enough. This one, agriculture extension is a bridge that is fulfill the gap between agriculture research station and on the one hand farming population, on other hand stabilizing the suitable teaching organization at various level of administration. This one also definition कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या करता है. आप अगर देखें तो एक गैप को ब्रिज बनाता है, गैप को ब्रिज बनाकर गैप को दूर करता है. कैसे? एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन से जो नॉलेज है, वन हैंड नॉलेज, वो ट्रांसफॉर्म करता है फार्मर फील्ड में टू सुटेबल टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, टू मेथड ऑफ टीचिंग, लाइक पहले प्रैक्टिकल कोर्सेस और पहले थ्योरी क्लासेस, उसके बाद प्रैक्टिकल डेमो, दैट लेवल. देन व्हाट वाज द एलिमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन? सो इट इज अ इंटरवेंशन, इज अ one type of intervention, that is the elements. It is a educational process, it is a communication intervention, tend to induce voluntary change in behavior, show, then focus number of target process and outcomes, then has a altruistic orientation, has technological research and professional dimension. So these are these elements. Means intervention, first one educational,
Then second one, communication intervention, behavioral trends to change, voluntary. Then outcomes, target which need to focus. Then orientation of holistic, technological research and professional dimension. Then definition, according to the definition extension education, it indicates that extension is of extending the educational advantage, forming sound opinion to make good decision, and inducing change in the voluntary behavior. This one according to elements. What was the major objective of extension? So the main objective, यहाँ पर क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चार में क्वेश्चन इस जगह से लगभग पूछा जाता है 2-3 साल में. What was the major objective of extension work? Is to teach people living especially in rural areas how to raise their standard of living by their own efforts, resource, using their resource, manpower, material with the minimum assistance of government. Means what was the basic of extension, basic or main objective? Means how they can secure livelihood security and how they can raise standard of standardization, how to reach. So this one. Then education is a effective when it results change in all following behavior components as specified by Liggins in terms of the knowledge, in terms of the attitude, in terms of skills, action. मैं इसको शॉर्टकट में बोलता हूँ कासा. के रिफर्स टू द नॉलेज, आई रिफर्स टू द एटीट्यूड, एस स्टैंड फॉर स्किल्स एंड एक्शन. एक्चुअली जब भी एक्सटेंशन का मेजर रोल यही है कि व्हाट द इंडिविजुअल नोज, कि व्यक्तिगत नॉलेज क्या है किसान को, किसी भी चीज़ की हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसका व्यक्तिगत नॉलेज क्या है उसको लेके पहले ये चीज़ समझना होगा. देन एटीट्यूड, कि उसका एटीट्यूड कैसा, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर हमने डिजाइन किया, उससे बोला कि लर्न कर, इसको अटेंड करिए, तो वो क्या सोचता है, उसको नकारात्मक सकारात्मक या न्यूट्रल. देन स्किल्स बोथ इन फिजिकल और मेंटल, कि व्हाट ही कैन डू आफ्टर गेटिंग अ ट्रेनिंग, व्हाट ही कैन डू, ही विल इम्प्लीकेट ऑन प्रैक्टिकल मैनर और नॉट, ही इज इंटरेस्टेड और नॉट, और फोर्सफुली ही मैंने कहा भाई आजा तू, तो उसके बाद फोर्सफुली मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर अटेंड कर रहा है, देन उसका मेंटल एटीट्यूड क्या होगा. एक्शन, व्हाट ही एक्चुअली डज, और उसने क्या किया. तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं दोस्त डियर. तो ये चीज़ है. अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कॉन्सेप्ट के ये तो बैकग्राउंड मैंने बताया अभी तक. अब कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं आप लोगों से. सो एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ बिहेवियरल साइंस, एज आई टोल्ड, it is a continuous, pervasive and discriminative educational process. It aims to affect the behavioral components of the people in desirable direction through conviction, communication, diffusion by the proven method, principle, philosophies, resulting in the learning involvement of the both silent and change system. Means कि इसमें several components हैं कि it is a continuous process और कंटिन्यूस बिहेवियरल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, और बिहेवियरल प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलता है और परसेसिव होता है, चेंज लाता है. डिस्क्रिमिनेटिव एजुकेशनल प्रोसेस से इट एम टू किस में, जो डिजायरेबल डायरेक्शन में एफर्ट्स करना है, जो किसान चाहता है उस डायरेक्शन में, या जो सोसाइटी चाहती है उस डायरेक्शन में. और जब उस डायरेक्शन में करेंगे तो उनका कन्विक्शन भी आएगा थ्रू कम्युनिकेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी. Or after that it will be proven by the principle of method which are using for the delivery the knowledge. So this one is a components. Then concept of extension is based on the following basic premises. These are the basic premises which are used in concept of extension education. First one, people have unlimited potential. Everyone has an unlimited potential for the personal growth and development. Then second one, development may take place at the stage of their lives if they are provided with adequate and appropriate learning opportunity.
मीन्स जो पीपल हैं, हर व्यक्ति की अपनी पोटेंशियल है अपने पर्सनली ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। देन डेवलपमेंट में टेक प्लेस एट द एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ इन देयर प्रोवाइडेड देयर एडुकेट अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर हम उसको अप्रोप्रिएट और किसी भी स्टेज में उसको लाइफस्टाइल में कोई भी एडुकेट पर्याप्त मात्रा में नॉलेज और लर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा किसी भी स्टेज। एडल्ट आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लर्निंग, और जो एडल्ट हैं वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओनली फॉर द सेक ऑफ लर्निंग दे आर मोटिवेटेड विद द न्यू लर्निंग प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। वो किससे हैं? जो न्यू लर्निंग है जिससे हम इनकम को बढ़ा सकें, सस्टेन कर सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सकें, अपस्केल कर सकें सोसाइटी, उस पर इंटरेस्टेड है। एप्लीकेशन फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब क्रॉप कल्टिवेशन से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात कर सकें तो मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी बहुत इनफ है। अब हमें मार्केट ओरिएंटेशन की बात करनी चाहिए, कैसे मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट लाएं, कैसे इंट्रोड्यूस करें, उसकी बात करनी चाहिए। तो इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग की उसको मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो, उसमें एडल्ट इंटरेस्टेड है, ना कि आपकी टेक्नोलॉजी पे, ना कि आपके ज्ञान पर। उससे अल्टीमेटली मिल क्या रहा है इस बात पर उसको मैटर करता है। देन सॉरी such learning is a continuous need of rural population and should be provided on continuous basis because of the problem as well as the technology of production and living are continuously changing. For example, individual group approach, ICT. So अब यहाँ पर क्या है कि आप लर्निंग का ये मेथड जो है कि ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है पॉपुलेशन के बीच में, और बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हैं सो उनको टेक्नोलॉजी से हैंडल किया जा सकता है कहीं पर भी। और ऐसा तो है नहीं कि आज भी फार्मर फील्ड में प्रॉब्लम नहीं है, इंसेक्ट है, पेस्ट है, डिजीजेस है, बहुत सारा अट्रैक्ट करता है। तो उस समय पर उनको किस तरीके की ICT के थ्रू हेल्प मिल सकती है, ग्रुप अप्रोच के थ्रू या इंडिविजुअल व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट से, किसी भी तरीके से उनका समस्या का समाधान होना टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दैट इज देन अनदर कॉन्सेप्ट, given the required knowledge still people are capable to making optimal choice their individual social benefits। means उनको हम जो उनको नॉलेज है वो स्किल्स की ज़रूरत है, उनको हम कैपेबल बना दें ऑप्टिमल मिनिमम चॉइस में, ताकि वो सोशल बेनिफिट सामाजिक रूप से ले सकें। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंस? सो एक्सटेंशन यूज डेमोक्रेटिक मेथड इन एडुकेटिंग द फार्मर। So it is a democratic approach. Then extension help in adoption of innovation, adoption of innovation में help करता है। extension help in studying and solving the rural problem, help किस में करता है? extension studying and solving the problem, मतलब solving problem है extension education। then extension increase the farm yield, improving the standard of living of farmer। extension make good communities better and progressive। extension contribute to the national development program। what was the scope of extension education? okay, so we can also discuss scope. After that I will continue next session on tomorrow because it is a very lengthy। okay, so what was the scope? It include all activities of rural development, so extension program should be dynamic, flexible. The area of indicating scope of extension are listed below. These are the scope, means increase efficiency of agriculture production, increase efficiency of marketing जो मैंने बात की, distribution of utilization of agriculture, inputs की बात की, quality of inputs and outputs मिल सके farmers को, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, प्रॉपर फार्म एंड होम मैनेजमेंट की बात करें, बेटर फैमिली लिविंग की बात की जाए, यूथ डेवलपमेंट की बात की जाए, लीडरशिप डेवलपमेंट क्वालिटी की बात की जाए, कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए, इम्प्रूविंग पब्लिक अफेयर्स ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल हेल्पिंग देयर राइट। सो दीज आर द स्कोप। एंड कि
कैसे भी करके जब हमारा नॉलेज डेवलप होगा तो ये सारी चीज़ें डेवलप होनी है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली विलेज प्लान्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन वेरियस ऑक्यूपेशन, लाइक कोई जॉब भी कर रहा है तो जॉब के साथ उसने सब्सिडरी ऑक्यूपेशन में डेयरी फार्मिंग कर ली, उस तरीके से बात कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर बेटर फैमिली लिविंग, कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड हेल्प बेटर मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एंड इंक्रीज इनकम, बेटर मैनेजमेंट ऑफ फार्म, कैसे रख रखाव किया जा सके फार्म यंत्रों का, फार्म मैकेनाइजेशन का, तो उनकी बात की जाए। टू एनकरेज द फार्मर टू ग्रो हिज ओन फूड्स, ईट वेल एंड लिव वेल। अब आज की बात की जाए तो आज तो आप तो देखते हैं रासायनिक खाद युक्त भोजन है, तो अब फार्मर को इस तरीके से बताया जाए प्राकृतिक खेती या जैविक फार्मिंग के बारे में बताकर उनको और उसका एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन मतलब डेमो कराया जाए, तो हो सकता है वो इस आइडिया को अडॉप्ट कर लें कि भाई इससे एक खाने की हैबिट अच्छी होगी तो बीमारियां चली जाएंगी, ये समझाना पड़ेगा। टू इनकरेज द फार्मर टू ग्रो हिज promote the better social and natural, recreational, intellectual and spiritual life, to help rural families in better appreciation of SWOT analysis, to open the new opportunity for the developed talent and leadership of the rural peoples, to build rural citizens who are proud for their occupation। मतलब आजकल जो नेग्लिजेंस ऑफ सोसाइटी है फार्मर्स को लेके कि प्यून को कुर्सी दे देते हैं, फार्मर को नहीं देना चाहते। जैसे आप बताएंगे फार्मर, अरे सोसाइटी ऐसा करता है, पर पंजाब में ऐसा नहीं, पंजाब में फार्मर को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, हरियाणा में लेकिन कुछ स्टेटों में प्यून को चेयर प्राउडली देते हैं लेकिन फार्मर को नहीं। इन सब माइंडसेट को चेंज करना, इनको निगलेक्ट करके आगे बढ़ना, कंस्ट्रक्टिव आउटलुक में लगे रहना, कैपेबल और सेल्फ रेजिलेंट कैरेक्टर को डेवलप करना और कंट्री को हेल्प करें। अब व्हाट वाज द रीजन ऑफ एक्सटेंशन टू नीडेड टुडे, क्या ज़रूरत है हमें आज के समय एक्सटेंशन की। वी आर सस्टेनर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वी आर कैटलिस्ट ऑफ चेंज, NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम, NAIP का मतलब है वी आर एन एजेंसी ऑफ एम्पावरमेंट, SHG, WIG, CIG, FPO, वी आर ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वी आर कंस्ट्रक्चर मोर देन गूगल हाउ टू यूज इट, we are synergist, then means ICR, SEO department, farmers, these are, we are collaborative public private models, ICT, etc. So these are the reason we need to deal extension today aspect. So what is the need क्या है, need of for extension, need for extension तो बात हो जाती है, पहले need क्या है। So the gap between what is and what ought to be is called need. The gap between what is and what ought to be is called need. Need for extension क्या है? The need of extension arises out fact that the condition of the rural people in general and in the farm families in the particular has to improved. Then second one, gap between what is and what ought to be is actual desirable situation. जो मैंने अभी बताया, द गैप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी इज कॉल्ड नीड। द गैप हैज टू बी नैरो डाउन एप्लीकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन देयर लाइवलीहुड सिस्टम एंड ब्रिंगिंग अप्रोप्रिएट चेंज इन देयर बिहेवियर। सो बिकॉज ऑफ दिस इज द नीड ऑफ टुडे टू डील एक्सटेंशन। अकॉर्डिंग टू द सुपे इन 1987 इन्होंने बोला द रिसर्चर नाइदर हैव अ टाइम नॉर आर दे इक्विप्ड for the job pursuing the village to adopt scientific method to ascertain from them their problems. Similarly, it's difficult for all the farmers to visit their research station and obtain first information. कि हर किसान को पॉसिबल नहीं है कि, और हर साइंटिस्ट भी ऐसा नहीं है कि हर किसान के खेत पे पहुंच जाए, और ऐसा भी नहीं है हर किसान अपनी समस्या को लेकर रिसर्च स्टेशन पहुंचा दे। तो इसलिए भी हमें ज़रूरत है, और रिसर्चर भी जो है नाइदर हैव अ टाइम, इतना इनफ टाइम नहीं रखते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस द नीड ऑफ एक्सटेंशन। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। टुडे वी कैन स्टार्ट, टुडे दिस इज अ सेशन, नाउ टुडे इज इनफ। concept of extension educational process we can start tomorrow, and the lecture schedule will be uploaded every day 5 PM
sorry for delay today because of the inconvenience of the light current flow in my home or hometown. So sorry dear student, we can meet tomorrow, and also we can try on tomorrow in morning I will upload farm management production economics lecture. Okay, thank you so much for hearing me, and please आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा JRF के स्टूडेंट को मेरे ग्रुप में जोड़ें और मेरे JRF और SRF के मैटर को देखें और मेरे पढ़ाने के तरीक़ों को देखें, इम्प्रूव होगा। एक्चुअली थोड़ा सा मैं सिक भी हूँ, तो आप लोग मेरा साथ दें, मैं आपके साथ JRF और SRF की प्रिपरेशन अच्छे से कराऊँगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरे फ्रेंड्स में, जहाँ पर भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर शेयर करें। थैंक यू सो मच डियर। ओके, वी विल मीट यू टुमारो।